So, hello everyone. We are starting the chapter of standard 7th. This is the first chapter, nutrition in plants. So, what the topics we are going to discuss? So, this is the first slide, and we are going to discuss this all the topics. Okay, we are going to discuss this all the topics. So, let us move to the chapter. Okay, so first slide says about nutrition in plant. So what do you mean by nutrition and how plant perform the process of nutrition? So nutrition is just the process by which organism take food and use it इन देयर बॉडीज. ओके, सो यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या करता है, फूड का इंटेक करता है, फूड लेता है और फूड को प्रोसेस करता है, उसको यूज़ करता है. क्या कैसे करता है वो हम देखेंगे. सो व्हाट इज़ फूड? फर्स्ट, फूड ले रहा है, इंटेक कर रहा है, तो फूड क्या है? एनी सब्सटेंस कंज्यूम्ड बाय एनी ऑर्गेनिज्म टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट. कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम खाएं और जिससे अपने को क्या मिले, कोई न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिले. ठीक है. सो एनीथिंग, एनी सब्सटेंस कंज्यूम्ड बाय an organism to provide nutritional support, that is food. And nutrition is the process by which organism take in food and use it in their bodies. So why food is essential? So food is essential for all the organism because it contains carbohydrate or it contains nutrients या फिर nutritional support, nutritional value. So it contains carbohydrate, the first one, protein, fat, vitamins, minerals, roughage and water. So we know that there are seven components of food or seven components or seven nutrients. So these are the those seven components: carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals, roughage and वाटर. वॉट एवर वी आर ईटिंग, हम कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें से इन सातों में से कोई एक होगा ही होगा. ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट बोल रहे थे. ओके, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड, हाँ देखो लिख कर रखा है इधर, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडीज. Nutrients help living organisms to build their bodies, grow, repair damaged parts and provide energy for life processes. ठीक है, तो फूड से अपने को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है. और उस न्यूट्रिएंट से अपने को किस किस बात की मदद मिलती है, तो हमारी बॉडी ग्रो करती है. पहली चीज मतलब बेसिकली तीन चीज़ें मिलती है. एक तो अपने को एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो एनर्जी अगर पूछे तो एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. ठीक है, विटामिन से बहुत कम एनर्जी मिलती है, तो ये एनर्जी प्रोवाइडिंग हो गए. ठीक है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कौन करता है, मतलब अपने को बीमारी से कौन प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स. ओके, और बॉडी बिल्डिंग, बॉडी रिपेयर, जो डैमेज पार्ट है उसको उसमें कौन हेल्प करता है, तो प्रोटीन. तो ये बेसिकली तीन चीज़ें होती है, अपने फूड से फ़ायदा होता है. ठीक है, सरफेस क्या करता है, प्रॉपर डाइजेशन एंड एसिमिलेशन में हेल्प करता है. ठीक है, वेस्ट रिमूवल में, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके रिमूवल में ये मदद करता है. ओके, तो तीन चीज़ें मिलती है. एक क्या, एनर्जी मिलती है, इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, और तीसरा क्या होता है, तो बॉडी पार्ट्स रिपेयर होते हैं, टिश्यू जो डैमेज है वो रिपेयर होता है. ओके, और नए टिश्यू का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, ग्रो मीन्स formation of new cells, new tissue. Okay, so what are the modes of nutrition? So there are basically two modes of nutrition in plants. Okay, so the first one is autotrophic mode of nutrition and the second one is heterotrophic mode of nutrition. Okay, let us move to the next slide. So next slide deals with the autotrophic mode of nutrition. Auto means, so autotrophic mode of nutrition, auto means self. Okay, autotrophic mode of nutrition, auto means self. Okay, so in this process what a plant does, they are able to nurse themselves, means they are able to prepare their own food. Okay, auto means self, trophic means, oh wait a second, wait. So auto means self, trophos means nourishment. Auto means self, trophos means nourishment. So they are able to nurse themselves. Okay, autotrophic mode of nutrition is when organism make their food carbohydrate from simple substances such as
such as carbon dioxide and water. These organisms, mainly plants, are called autotrophs or producers. ठीक है, वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं या फिर बेसिकली ग्रीन प्लांट्स कह सकते हैं, क्योंकि मेन जो है वो ग्रीन प्लांट्स इस कैटेगरी में आते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो मेनली ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं या फिर प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या करते हैं भाई, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर से, कार्बोहाइड्रेट बोल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ओके, ऑटोट्रॉफिक कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है, खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर पा रहा है। ठीक है, खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस। ओके, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दो अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड किया जा सकता है, दो अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज फोटो ऑटोट्रॉफ एंड द सेकंड वन इज कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट एंड कीमो मीन्स केमिकल्स, कीमो मीन्स केमिकल। तो वैसा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो फूड बनने का प्रोसेस होगा वो किसकी हेल्प से होगा, लाइट की हेल्प से होगा, वो क्या कहलाएगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वैसे जो प्लांट्स होंगे, वैसे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या कहलाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, और जो प्रोसेस है वो क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ कीमो ऑटोट्रॉफ्स के कहलाएंगे जो कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे। और कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है, तो न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम सराउंडिंग केमिकल, जो आजू बाजू में केमिकल्स रहते हैं उससे क्या करते हैं, उसी से अपना एनर्जी कह सकते हैं या फिर फूड को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जो जैसे कोई मरीन में बैक्टीरिया है, कोई समुद्र में बैक्टीरिया है, ठीक है, उससे क्या कर रहा है, उसके आसपास जो भी क्या है, छोटे मोटे केमिकल्स हैं। ठीक है, छोटे मोटे केमिकल्स है, उससे अपना वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट ले रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, और कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो बैक्टीरिया है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिख के रखा है सल्फर बैक्टीरिया, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अगर फोटो ऑटोट्रॉफ्स में देखें तो हमारा बेसिकली कौन कौन आएंगे, ग्रीन प्लांट्स आएंगे। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया आएंगे जिसको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और क्या आएंगे, तो फाइटो प्लैंक्टन्स आएंगे। ठीक है, फाइटो प्लैंक्टन्स आएंगे। नाउ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होगा, हेटेरो मीन्स वो खुद से सेल्फ नरिशमेंट के लिए एबल नहीं है। ठीक है, सो दे विल बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ठीक है, फूड सपोर्ट के लिए वो क्या होंगे, किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे। इन दिस मोड ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स को हमने क्या बोला है, प्लांट्स को हमने क्या बोला है, तो हमने बोला है प्रोड्यूसर। ठीक है, हमने इसको क्या बोला है, प्रोड्यूसर, इसको हमने प्रोड्यूसर बोला है। तो ये क्या कर रहा है, फूड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो फूड को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है वो किसी ना किसी इसी पे डिपेंडेंट होगा ना, प्रोड्यूसर पे ही डिपेंडेंट होगा ना। तो जैसे हम हैं, हम क्या हैं, हम अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। हम जो किचन में कर रहे हैं वो हम फूड को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम फूड को क्या कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, हम फूड प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। फूड प्रिपेयर कौन कर रहा है हमारे लिए, तो प्लांट्स कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स कर रहे हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं, वो क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ओके, नाउ थर्ड स्लाइड इज अबाउट फोटोसिंथेसिस। नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? So photosynthesis is the main process by which green plants prepare their own food. So this is called as food making process in plants, food making process in plants or food making process in green plants. So leaves are the factories of food factories. Leaves are the food factories of plants. ठीक है, तो लीव्स को फूड फैक्ट्रीज क्यों बोला गया है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का काम होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो जहाँ भी क्लोरोफिल होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। क्यों, क्योंकि
क्लोरोफिल क्या कर लेता है, सनलाइट को या फिर लाइट को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट होता है, फोटो मीन्स सनलाइट नहीं होता है, फोटो मीन्स लाइट होता है, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट, ये प्रकाश जो अपने को दिखती है दैट इज फोटो, ठीक है। तो जैसे हमारा बल्ब जलता है, ठीक है, तो बल्ब में भी फोटोसिंथेसिस होगा, बल्ब के लाइट में भी फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन वहाँ पर रेट कम होगा। जो फोटोसिंथेसिस का रेट होगा अगर हम कंपेयर करेंगे सनलाइट से तो वहाँ पे कम होगा। सो लीव्स को फूड फैक्ट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहीं पे फोटोसिंथेसिस का काम होता है। क्यों होता है, तो वहाँ पे क्लोरोफिल होता है। ओके, दस ऑल रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के पास सिर्फ क्या है, क्लोरोफिल है, सॉरी लीफ के पास क्या है, क्लोरोफिल है। लेकिन और क्या क्या चाहिए भाई, तो अपने को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, सनलाइट तो वो ट्रैप कर लेगा। दूसरा क्या चाहिए, तो वाटर चाहिए, ठीक है। 4 कंपोनेंट जरूरी होते हैं सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए। सो द फर्स्ट वन इज क्लोरोफिल जो लीफ से मिल रहा है, सेकंड वन इज सनलाइट जो अपने को नेचर से मिल जाएगा, ट्रैप कर लेगा क्लोरोफिल, दो चीज़ें हो गई। थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ इज वाटर। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से मिल जाएगा, सो वाटर एंड मिनरल्स आर ऑब्जर्व फ्रॉम रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। रूट्स क्या करेगा, ग्राउंड से वाटर ले लेगा एंड उसके साथ जो मिक्स मिनरल्स रहेंगे उसको कहाँ पहुँचा देगा, तो लीफ में पहुँचा देगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इंटर्स द लीफ थ्रू टाइनी पोर्स ऑन इट्स सरफेस नोन एज स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा क्या है, टाइनी पोर्स, टाइनी पोर्स, टाइनी ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। तो लीफ स्टोमाटा क्या है, टाइनी सरफेस, टाइनी सरफेस नॉट टाइनी ओपनिंग्स, टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्टोमाटा से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। स्टोमाटा से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो वहां से अपने को क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। विच आर स्टोमाटा, स्टोमाटा किससे गार्डेड होता है, विच आर रेगुलेटेड बाय द गार्ड सेल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। गार्ड सेल्स की वजह से क्या होता है, स्टोमाटा ओपनिंग और स्टोमाटा क्लोज होता है, ठीक है। स्टोमाटा ओपन और स्टोमाटा क्लोज किसकी वजह से होता है, तो गार्ड सेल्स होता है, ठीक है। इस तरीके से होते हैं गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। इस तरीके से गार्ड सेल्स के बने होते हैं। और ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है, ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है, यही क्या है, यही क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग है, ठीक है। स्टोमेटल ओपनिंग है। चलो, नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेटिक, दिस इज द डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो सनलाइट हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ से ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ से ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ नहीं दिखाएगा, ये थोड़ा सा डायग्राम गलत दिखा दिया है। ओके, चलो ठीक है, मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ठीक है। तो सन से अपने को क्या मिल गया, सनलाइट मिल गया। और ये हमने क्या बना दिया, प्लांट बनाया, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ से एक्सचेंज करेंगे, CO2 हमने ले लिया, CO2 हमने ले लिया, एंड एज अ रिजल्ट हम जो प्लांट्स रिलीज करेगा, ठीक है, जो प्लांट्स रिलीज करेगा वो क्या करेगा, तो ऑक्सीजन करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। नाउ जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स से क्या आ जाएगा, वाटर एंड मिनरल आ जाएगा, ठीक है। तो वाटर एंड मिनरल कहाँ से आ जाएगा, रूट से आ जाएगा। तो एक हो गया हमारा सनलाइट, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम कहाँ से ले रहे हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है, वहाँ से एक्सचेंज कर रहा है। ओके, नाउ थर्ड वन इज वाटर एंड मिनरल्स, और फोर्थ वन क्या है, तो क्लोरोफिल है। फोर्थ वन क्या है, क्लोरोफिल है, वो कहाँ पे है, तो वो पहले से हमारे पास लीव्स में है, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, ठीक है। चलो, और कीमोसिंथेसिस क्या है, कीमोसिंथेसिस मैंने क्या बोला था, जो न्यूट्रिशन होगा, जो फूड होगा वो कहाँ से ले लेगा, तो आसपास में सराउंडिंग में जो भी केमिकल्स रहेंगे उससे वो ऑब्टेन करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सल्फर बैक्टीरिया है, ठीक है। सल्फर बैक्टीरिया होता है, सल्फर पर्पल बैक्टीरिया होता है। ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स है जो कीमोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो आसपास में जो भी जैसे कि हमारा हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड होगा या फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड होगा, ठीक है। तो वहाँ से क्या कर लेगा, वो सल्फर ब्रेक करके, सल्फर ऑक्सीजन को ब्रेक करके वो अपना न्यूट्रिशन ले लेगा, ठीक है। चलो ना, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट फूड मटेरियल्स। ओके, कम ऑन।
Just a second, just a second. Okay, so this is regarding transportation. So xylem transports, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा कि लीफ में फूड, लीफ को फूड फैक्ट्री बोल रहे हैं। लीफ को फूड फैक्ट्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो अपने को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए क्या क्या? तो वाटर एंड मिनरल चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो सनलाइट तो उसको मिल जाएगा सन से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल जाएगा एटमॉस्फेयर से, एक्सचेंज कर लेगा स्टोमेटा से। लेकिन क्या बच गया? वाटर एंड मिनरल बच गया। तो वाटर एंड मिनरल कहाँ पे, कैसे आएगा, ठीक है। और फूड बन रहा है हमारा कहाँ पे? लीफ में। लेकिन क्या सिर्फ फूड लीफ को चाहिए, बाकी प्लांट के पार्ट्स को नहीं चाहिए? जैसे हम खाना खाते हैं तो क्या अपने पेट को ही सिर्फ न्यूट्रिशन चाहिए, बाकी हमारे अदर पार्ट्स को नहीं चाहिए? चाहिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या है? ब्लड है, जो क्या करता है? पूरे हर चीज़ को हमारे बॉडी में रेगुलेट सर्कुलेट करते रहता है, ठीक है। सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा ब्लड है। इवन हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, वो भी कौन सर्कुलेट कर रहा है? तो ब्लड हमारा कर रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी में है वो भी कलेक्ट करके कौन ला रहा है? तो ब्लड ला रहा है। उसी तरीके से जो हमने डाइजेस्ट करके फूड एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, वो भी कौन सर्कुलेट कर रहा है? ब्लड कर रहा है। तो हमारे बॉडी में ब्लड है। प्लांट्स में क्या है? प्लांट्स में दो चीज़ें हैं, जाइलम है और फ्लोएम है, ठीक है। तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है रूट्स से लीव्स तक, टू द लीव्स, वाइल फ्लोएम vessels carry food prepared in the leaves to the other parts of the plant, ठीक है। तो जाइलम क्या करेगा? वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। और फ्लोएम क्या करेगा? इट विल ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। फोटो, यहाँ मैंने जो फूड लिखा है इसको क्या लिखेंगे? फूड लिखो या फिर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स लिखो। मतलब फोटोसिंथेसिस में जो कुछ भी बना है, ठीक है, सिर्फ जो कुछ भी बना है वो सारा कुछ ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करेगा? फ्रॉम लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। देखो ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। लीव्स क्या करते हैं? क्लोरोफिल रहता है उनके पास, अ ग्रीन पिगमेंट दैट कैप्चर्स सनलाइट एनर्जी टू प्रिपेयर या फिर टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। एक पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। वो सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, ट्रैप कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फूड बनाता है। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू पुट टुगेदर या फिर टू कंबाइन, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू पुट टुगेदर या फिर टू कंबाइन, एक साथ चीज़ों को रखना। इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस food. The sunlight is the ultimate source of energy for all the livings, ठीक है। तो सनलाइट क्या है? सनलाइट को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोला गया है। अगर सनलाइट ना हो तो अभी जो प्रोसेस हमारे पास है वो फोटोसिंथेसिस उसकी वजह से हो रहा है। तो सनलाइट ना होगा तो फोटोसिंथेसिस ना हो पाएगा, तो जो फूड है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा। तो हमारा बचना, सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा या फिर ना के बराबर हो जाएगा, अगर कोई नई ऐसी प्रोसेस नहीं इवॉल्व होती है तो। फोटोसिंथेसिस का जैसे ही कोई अगर नई प्रोसेस इवॉल्व नहीं होती है और सनलाइट ना हो तो देयर विल बी एंड ऑफ सर्वाइवल ऑन द अर्थ, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? सनलाइट को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ओके, ना फोटोसिंथेसिस ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। हाँ, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ऑक्सीजन भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। देखो, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है प्लांट, ठीक है, और ऑक्सीजन एक्सहेल करता है, ठीक है। मतलब कि एक्सहेल और इनहेल, अगर वो देखो, ऑक्सीजन हर किसी को चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस, ठीक है। तो मतलब इस लाइन से आप ये जानिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है उसको बनाने के लिए भी फोटोसिंथेसिस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। दूसरी बात, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि प्लांट्स को ऑक्सीजन कब चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कब चाहिए, ठीक है। या फिर ये होता है कि प्लांट्स को सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या फिर सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि प्लांट्स, अगर वो, देखो ऑक्सीजन से पहले होता क्या है? ऑक्सीजन से क्या होता है? तो ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है और रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड को क्या करता है? ये हमारे पास फूड है, ये हमारे पास फूड है। तो जैसे हम इसको क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। अपने को क्या मिलेगा?
तो एनर्जी मिलेगा। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको, आप मुझे बताइए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? सबको चाहिए, ठीक है। वो एनर्जी कहाँ से आएगा? फूड को तोड़ने के बाद आएगा। फूड का ब्रेकडाउन होगा तब क्या आएगा? एनर्जी आएगा। और उस फूड के ब्रेकडाउन के लिए ज़रूरी क्या है? तो ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो इस फॉर्मूले से, इस कंसेप्ट से अगर हम देखें तो प्लांट्स को भी 24/7, ठीक है, 24 मतलब 24 आवर्स उसको भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। उसको भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। एक बात तो क्लियर हो गया। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि फूड का ब्रेकडाउन करना जरूरी है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या जरूरी है? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो प्लांट्स को भी ऑक्सीजन 24/7 चाहिए ना। कार्बन डाइऑक्साइड उसको कब चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ क्या है? वो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहा है। तो जब भी वो फोटोसिंथेसिस करेगा तब उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। अगर डे टाइम में, मोस्टली डे टाइम, ठीक है, मोस्टली डे टाइम अगर सनलाइट में हमारा प्लांट है तो क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। या फिर रात में कहीं पे प्लांट है जहाँ पे लाइट है तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कब चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड उसको कब चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड उसको कब चाहिए? वाइल फोटोसिंथेसिस, जब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है तब चाहिए, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस कब कब कर रहा होता है? मेनली तो डे टाइम में कर रहा होता है, ठीक है, डे टाइम में कर रहा होता है। तो नाइट में उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डे और नाइट दोनों टाइम पे क्या है? उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब उसको ऑक्सीजन चाहिए तो फिर वो ऑक्सीजन ला कहाँ से रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे? ऑक्सीजन ला कहाँ से रहा है? तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो टूट रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड टूट रहा है, देखो ये ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, ठीक है, तो ये जो कार्बन है वो कहाँ पे चल जाएगा? जो रूट से H2O लिया है, रूट से जो H2O लिया है उसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा और ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है, ग्लूकोज बनाएगा। और ये जो फ्री रह गया अभी ऑक्सीजन, वही क्या हो जाएगा? लिबरेट हो जाएगा। पहले यूज़ करेगा प्लांट खुद के लिए, फूड के ब्रेकडाउन के लिए, और खुद के फूड के ब्रेकडाउन के बाद जो बच जाएगा वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा, एटमॉस्फेयर में लिबरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है, मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो होता है वही प्लांट अपने को देता है, नहीं तो वो पहले खुद यूज़ करता है, ठीक है। अगर एक पॉइंट यहाँ ऐसा भी आता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जितना वो ले रहा है और जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का लेवल बराबर हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। फिर वहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होता है, प्लांट ही उसको यूज़ कर लेता है। ओके नाउ चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हो गया। लीव्स विद कलर्स अदर देन ग्रीन स्टिल कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। अच्छा, शुरू शुरू में हमें आप देखते होंगे कि जो लीव्स होते हैं ना वो आपको ग्रीन नहीं दिखते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो ग्रीन नहीं होते। बाकी जो कलर्स होते हैं, जैसे ब्राउन दिखता होगा आपको या फिर रेडिश दिखता होगा, ठीक है, येलोइश दिखता होगा, ग्रीन कलर होता है, लेकिन येलोइश जो कलर है वो ज़्यादा होने की वजह से ग्रीन कलर नहीं दिखता है। तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का रेट थोड़ा कम होगा क्योंकि उसमें जो ग्रीन पिगमेंट है वो कम है, और ग्रीन पिगमेंट के अलावा जो पिगमेंट्स है वो ज़्यादा है, इसीलिए ग्रीन पिगमेंट अपने को दिखता नहीं है। ग्रीन पिगमेंट मीन्स क्लोरोफिल अपने को दिखता नहीं है, ठीक है। तो वैसे प्लांट्स में भी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। अदर पिगमेंट्स में मास्क द ग्रीन कलर, ठीक है, दूसरे मास्क कर दे रहे होते हैं। एल्गी इन वाटर बॉडीज कंटेन क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसाइज गिविंग देम अ ग्रीन कलर। एल्गी के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो मैंने पहले ही बोला जहाँ भी क्लोरोफिल होगा उसको अगर सनलाइट मिल गया तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको एटमोसफेयर से मिल ही जाएगा। ओके, सो ये जो गार्ड सेल अपन देख रहे थे, स्टोमाटा जो देख रहे थे वो यहाँ पे है। देखो गार्ड सेल्स है, ये मैंने दो बना के दिखाया था। ये हमारा क्या है? ये थोड़ा थोड़ा चेक करता हूँ। ये हमारा क्या है? गार्ड सेल है, ठीक है। ये हमारा क्या है? गार्ड सेल है। गार्ड सेल में न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा अंदर अंदर, ठीक है। ये जो अपने को दिख रहा है वो क्या है? ये जो अपने को क्या है? वो न्यूक्लियस है। ओके, ना स्टोमेटल पोर है। ये हमारा जो बीच में है वो क्या है? स्टोमेटल पोर है। ये बीच में हमारा क्या है? स्टोमेटल पोर है, ठीक है। तो ये जो हमारा अभी है वो क्या है? ओपन स्टोमाटा है, ठीक है, ओपन स्टोमाटा है।
और ये उसी में क्या है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है। तो इसी ओपनिंग से क्या होती है, इसी ओपनिंग से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। ये जो स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल ओपनिंग है, उसी से क्या होता है, हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। ठीक है, तो जब स्टोमेटल ओपन होगा तब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाएंगे। जब स्टोमेटल क्लोज हो जाएगा तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो रुक जाएंगे। ठीक है, ये भी कैसे होता है, मतलब स्टोमेटल ओपन कैसे होता है, स्टोमेटल क्लोज कैसे होता है, वो भी एक कंसेप्ट है, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है। सो उतना ज़्यादा 7th के लेवल पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देने का। ओके, वो 10th की चीज़ है। ओके, जाइलम क्या करता है, तो जाइलम हमारा वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है तुम्हारा, फ्लोएम क्या करता है, तो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, अगर पूछे जो जाइलम का फंक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है या फिर बाई डायरेक्शनल है, मतलब यूनि मीन्स एक ही डायरेक्शन में होता है या फिर बाय मीन्स 2 डायरेक्शन में होता है। तो जाइलम जो है, जो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। वो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है। वो क्या होगा, सिर्फ नीचे से ऊपर ही जाएगा, फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाएगा, क्योंकि लीव्स कहाँ पे है, तो टॉप में है, और रूट कहाँ पे है, तो बॉटम में, तो बॉटम से पानी उठाएगा और टॉप में जाएगा। ओके, लेकिन अगर पूछे फ्लोएम, तो फ्लोएम का क्या है काम, फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना। तो लीव्स कहाँ पे हैं, नीचे हैं, सॉरी लीव्स कहाँ पे है, टॉप में है, और टॉप से क्या करना है, हर जगह फूट जाना है। ठीक है, हर जगह फूट जाना है। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूँ, अगर ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट है, और यहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो क्या होना है, ये पूरे में आना है। और अगर 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 हम देखें, ये अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा प्लांट है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो इस फूड को ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ भी जाना है, टॉप में भी जाना है, इस फूड को ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ भी जाना है। अब कह सकते हैं कि सर अगर लीव्स यहाँ भी है और लीव्स यहाँ भी है, तो यहाँ का फूड यहाँ पे क्यों जाएगा। हो सकता है कि वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का रेट हो वो कम हो, ठीक है, और वहाँ पे जो यूज़ है फूड का वो ज़्यादा है, ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, नीचे वाले ब्रांच से ऊपर वाले ब्रांच में भेजना पड़ेगा फूड। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो वाटर एंड मिनरल्स है वो यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट्स है वो बाई डायरेक्शनल होगा, दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, नाउ फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड बियॉन्ड कार्बोहाइड्रेट। अभी तक हमने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट बन रहा था। ठीक है, हम क्या ले रहे थे, अच्छा इसको मैंने कहीं पे लिख के नहीं दिखा, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। सॉरी, अभी तक जो हम देख रहे थे वो बेसिकली क्या देख रहे थे, अभी तक जो हम देख रहे थे वो ये देख रहे थे, हम क्या ले रहे थे, हम ले रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड। ओहो वेट वेट वेट, हम ले रहे थे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले रहे थे, तो एटमॉस्फेयर से ले रहे थे। हम कहाँ क्या ले रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से ले रहे थे। इसके साथ हम क्या ऐड कर रहे थे, तो इसके साथ हम ऐड कर रहे थे वाटर। ठीक है, वाटर एंड मिनरल ऐड कर रहे थे। और इसके बाद क्या हो रहा था हमारा, इसके बाद का जो प्रोसेस था, हमारे पास क्या था, सनलाइट हमारे पास आ रहा था, सनलाइट आ रहा था। ठीक है, और हमारे पास पहले से लीफ में क्या था, तो क्लोरोफिल था, लीफ में क्लोरोफिल था। और ये बना क्या रहा था, तो बेसिकली जो बना रहा था वो क्या बना रहा था, कार्बोहाइड्रेट बना रहा था, जिसका कि फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, C6। जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, ग्लूकोज है, तो C6H12 एंड O6। ठीक है, और साथ में क्या कर रहा था, साथ में ऑक्सीजन भी ये लिबरेट कर रहा था। ठीक है, साथ में ऑक्सीजन, जो मेन फार्मूला है वो यही है। ठीक है, इसके अलावा भी क्या होता है, हीट रिलीज होता है। ठीक है, और वाटर वेपर भी रिलीज होता है। ठीक है, चलो, तो ये अभी तक हम कर रहे थे, ये अभी तक हम कर रहे थे। इसको एक लाइन में अगर आप लिखे, तो एक लाइन में ये कुछ इस तरीके से आएगा, एक लाइन में ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया। ठीक है, और ये हमारा क्या है, हमने वाटर लिया, और ये हमारे पास क्या है, सनलाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है। और हमारे पास लीव्स में क्या है, क्लोरोफिल है, लीव्स में हमारे पास क्लोरोफिल है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो अभी तक अपने पास जो बन रहा है ग्लूकोज का सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट बन रहा था। लेकिन क्या प्लांट बॉडी को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, या फिर जो उस पर डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है उनको क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, नहीं। हमने क्या देखा है, 7 कंपोनेंट्स ऑफ हमने फूड देखा है।
तो वो जो 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड है हर ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए है या फिर सिर्फ एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए वो सारे के सारे ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो प्रोटीन है, फैट है, अदर मिनरल्स है, विटामिन्स है, वो भी प्लांट को किसी न किसी फॉर्म में चाहिए होगा, थोड़ा ही चाहिए लेकिन चाहिए। ओके, या फिर हम अपने को जो मिल रहा है वही प्लांट से मिल रहा है, तो प्लांट्स क्या कर रही है, उसको अगर फोटोसिंथेसिस में नहीं बनाएगी तो अपने को नहीं मिलेगा। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट के अलावा बाकी जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स कह रहा हूँ, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सिंथेसाइज हो रहे हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो अभी हमने देखा, हमने क्या किया था, CO2+H2O। तो ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन है। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बन रहा है आपके पास, ग्लूकोज बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। बट इनसफिशियंट फॉर प्लांट ग्रोथ, लेकिन ये क्या है, प्लांट ग्रोथ के लिए इनसफिशियंट है, सफिशियंट नहीं है। ठीक है, प्लांट्स ऑल्सो नीड प्रोटीन एंड फैट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स भी उसको चाहिए। प्रोटीन्स रिक्वायर नाइट्रोजन, जो प्रोटीन है उसके लिए क्या चाहिए, अपने को नाइट्रोजन चाहिए, विच इज़ अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर, जो कि सबसे ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में। लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। ठीक है, बट इन अ फॉर्म दैट प्लांट्स कांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। प्लांट्स एब्जॉर्ब इन 2 वेज। ठीक है, तो वो सॉल्युबल फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर सकती है, जो गैसेस फॉर्म में है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। नाइट्रोजन, तो दो तरीके कौन कौन से हैं जिससे वो एब्जॉर्ब कर सकती है। सो द फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं, उनके रूट्स में, प्लांट्स के रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पे देखो ये सिम्बायोटिक मोड आ जाता है फिर। ठीक है, सिम्बायोटिक मोड हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे बैक्टीरिया को क्या मिल जाता है, रहने के लिए घर मिल जाता है, क्योंकि वो प्लांट्स के रूट में रह रहे हैं तो उसको घर मिल गया। और वहाँ पे प्लांट्स को क्या फ़ायदा हो रहा है, तो जो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो सिंथेसिस प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो नाइट्रोजन चाहिए वो नाइट्रोजन उसको फिर वहाँ से सॉल्युबल फॉर्म में मिल जाता है। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द सॉइल कन्वर्ट gaseous nitrogen into usable water soluble फॉर्म लाइक अमोनिया। ठीक है, यूजेबल फॉर्म वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। वाटर सॉल्युबल मीन्स वाटर में अगर घुल जाएगा, वाटर में एक बार घुल गया तो क्या हो जाएगा, वाटर रूट्स जैसे एब्जॉर्ब करके ऊपर लेके जाएगा, वो वाटर के साथ वो भी आ जाएगा। सो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स एडेड बाय फार्मर्स, जो फार्मर्स नाइट्रोजन रिच, जब आपने देखा होगा कि हम जब क्रॉप लगाते हैं, ठीक है, फार्मर्स जब क्रॉप लगाते हैं तो बीच बीच में वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते रहते हैं। तो वो फर्टिलाइजर्स कैसे होते हैं, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स होते हैं। ओके, सो तो नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी प्लांट्स को क्या चाहिए, तो प्रोटीन चाहिए और फैट चाहिए। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, नाइट्रोजन जरूरी है। लेकिन नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होने के बावजूद, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा 78% होने के बावजूद भी जो प्लांट्स हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, गैसियस फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। उसको क्या चाहिए, तो सॉल्युबल फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो सॉल्युबल फॉर्म कहाँ से आएगा, दो तरीके से आएगा। एक क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से आएगा, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहाँ पे रहेंगे, सॉइल में रहेंगे, रूट्स में रहेंगे। ठीक है, द सेकेंड वन इज नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स ऐड कर देंगे हम सीधा सीधा, जो वाटर में सॉल्युबल होगा तो वहाँ से आ जाएंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड डील्स विद अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो अभी तक हमने क्या देखा, फोटोसिंथेसिस हमने देखा, कीमोसिंथेसिस हमने देखा। ठीक है, और इसके अलावा भी क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं। ठीक है, तो हो सकते हैं, जैसे हमारा अभी तो हम बेसिकली प्लांट में देखेंगे, लेकिन अगर हमारा देखें तो हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसमें भी क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो अलग अलग भी मोड्स होते हैं। तो अलग अलग मोड्स में प्लांट्स में क्या क्या आता है भाई, तो प्लांट्स में कुछ एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और दूसरे चीज़ों पे भी डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, मतलब हेटरोट्रॉपिक भी वो रहते हैं। तो सम प्लांट्स लैक क्लोरोफिल। ठीक है, हाँ, एक तो बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं होगा तो उसको तो फिर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा किसी न किसी के ऊपर। एंड कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, फोटो से मतलब क्लोरोफिल, मैंने पहले बोला क्लोरोफिल जहाँ पे होगा वहाँ पे सनलाइट कैप्चर हो जाएगा, सनलाइट ट्रैप हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस
पॉसिबल होगा। लेकिन अगर जहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा ही नहीं तो सनलाइट कैप्चर नहीं हो पाएगा, और सनलाइट कैप्चर नहीं हो पाएगा तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा? फोटो मीन्स लाइट, लाइट ही नहीं है तो फिर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो देखो वो जो चार कंपोनेंट्स है, क्लोरोफिल, सनलाइट, ठीक है, एंड देखो फोटोसिंथेसिस का अगर डेफिनेशन है तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन ये है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll and sunlight with the help of carbon dioxide and oxygen. ठीक, sorry, carbon dioxide and water, not oxygen, carbon dioxide and oxygen. I am repeating the definition of photosynthesis. Photosynthesis is a process in which green plants, mainly green plants, इसके अलावा भी है blue green algae भी है, so mainly green plants prepare their own food in the presence of chlorophyll and sunlight with the help of कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये चारों कंपोनेंट्स अगर नहीं रहेंगे, चारों में से कोई भी एक मिस हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, दिस प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स, फॉर एग्जांपल कस्कूटा, इसको हम क्या बोलते हैं? अमरबेल भी बोलते हैं, विच इज़ अ टोटल पैरासाइट एंड लैग्स लीव्स एंड रूट्स। ठीक है, दो तरीके के पैरासाइट्स होते हैं, एक कंप्लीट पैरासाइट या फिर टोटल पैरासाइट, दूसरा क्या होता है? पार्शियल पैरासाइट। ठीक है, पूरी तरीके से वो पैरासाइट नहीं होता है, पूरी तरीके से पैरासाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा और दूसरे पे डिपेंडेंट भी रहेगा। टोटल पैरासाइट मीन्स कि ये बिल्कुल भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। सो इट लैक्स रूट्स एंड लीव्स deriving nutrients from a host plant through हॉस्टोरिया स्पेशल रूट्स। ठीक है, इनके पास स्पेशल रूट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? प्लांट, जो होस्ट प्लांट है उसके बॉडी से पूरी की पूरे न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेते हैं। ठीक है, चूस लेते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट, जिस पे ये चढ़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट प्लांट बोलते हैं, या फिर होस्ट बॉडी बोलते हैं, या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स कैसे लेगा? तो विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रूट्स कॉल्ड एज हॉस्टोरिया। ठीक है, कॉल्ड एज हॉस्टोरिया। इनके पास लीव्स नहीं होते, इनके पास रूट्स नहीं होते, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होते। दे कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्ट्रक्चर दैट इंटैंगल इटसेल्फ अराउंड द होस्ट प्लांट। ठीक है, येलो वाइट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उससे क्या कर लेते हैं? इंटैंगल कर लेते हैं। देखो येलो वाइट तुमको दिख रहा होगा। ठीक है, उससे क्या कर लेते हैं? वो चीज़ जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो होस्ट प्लांट से सक कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, पार्शियल पैरासाइट। नेक्स्ट इज पार्शियल पैरासाइट। हमने टोटल पैरासाइट देखा, टोटल पैरासाइट का एग्जांपल अगर पूछे तो क्या है? कस्कूटा है, अमरबेल है। ठीक है, वो कंप्लीट पैरासाइट है या टोटल पैरासाइट है? क्यों है? क्योंकि उसके पास लीव्स या फिर रूट्स नहीं होते हैं तो क्लोरोफिल होता ही नहीं है। ठीक है, तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं वो किसी और प्लांट पे फूड के लिए या फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए। सो पार्शियल पैरासाइट, दे कैन फोटोसिंथेसाइज बट रिली ऑन अ होस्ट फॉर वाटर एंड मिनरल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो कर सकते हैं लेकिन वाटर एंड मिनरल्स के लिए वो किसी और पे डिपेंडेंट है, वो खुद से वाटर एंड मिनरल्स नहीं ले सकते हैं, मतलब खुद से मैनेज नहीं कर पाते हैं, दूसरे से वो लेते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्या है? मिस्टेलस्टो है, मिस्टेल्टो ग्रोज ऑन ट्रीज सच एज मैंगो। मैंगो ट्री पे छोटे छोटे पैचेस आपको दिखेंगे, वो क्या है? पार्शियल पैरासाइट के एग्जाम्पल है। इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, थर्ड क्या है? अदर न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और इंसेक्ट पे भी डिपेंडेंट रहते हैं, इंसेक्ट्स को भी खाते हैं ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें कुछ एक जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस से ये अपना अचीव नहीं कर पाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है वहाँ पे ये प्लांट्स ग्रो करते हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल है वहाँ पे ये प्लांट ग्रो करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने के बावजूद भी इनका जो नाइट्रोजन का ज़रूरत है, ठीक है, ये पूरा नहीं हो पाता है। तो क्या करते हैं? ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, फिर वहाँ से नाइट्रोजन ले लेते हैं। दीज ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल्स एंड सप्लीमेंट देयर नाइट्रोजन बाय ट्रैपिंग सेट्स। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो कहाँ से पूरा करते हैं? तो इंसेक्ट को ट्रैप कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पिचर प्लांट है एंड विनस ट्रैप है। ठीक है, पिचर प्लांट एंड विनस ट्रैप, आपने ये दोनों नाम सुने ही सुने होंगे। पिचर प्लांट तो फॉर श्योर आपने सुना होगा। इन द पिचर प्लांट द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स दैट ट्रैप इंसेक्ट। ठीक है, आगे मैंने इसका इमेज लगा कर रखा है, मैं बताता हूँ। तो ये जो इसका लीफ होता है, लीफ कैसे मॉडिफाई हो जाता है? एक पिक्चर के, एक घड़े के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाता है।
ठीक है, और उसके ऊपर एक लीड लगी रहती है। तो और उसके जो हेयर्स होते हैं वो डाउनवर्ड नीचे के साइड झुके हुए रहते हैं, ठीक है, नीचे के साइड झुके हुए रहते हैं। अच्छा, ये देखो मैकेनिज्म ये कैसे काम करता है, जैसे कि कोई इंसेक्ट आएगा, ठीक है, वो लीड जो है उसका जो ढक्कन है वो बंद हो जाएगा, और ढक्कन बंद होने के बाद अगर इंसेक्ट बाहर आने की कोशिश करेगा तो वो बाहर नहीं आके और ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि वो जो उसके जो हेयर्स हैं, ठीक है, अगर अगर आप इस तरीके से आप देखें, इस तरीके से ये एक पिचर प्लांट है, ठीक है, और इसके जो हेयर्स रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे, इसके जो हेयर्स रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे। तो अगर कोई कोई इंसेक्ट आके ऐसे ट्रैप हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई इंसेक्ट आके ट्रैप हो गया, अब ये इंसेक्ट अगर सोचे कि मैं बाहर जाऊँगा, तो ये क्या बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जो हेयर स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या कर लेंगे, उसमें वो इंटैंगल हो जाएगा, फँस के रह जाएगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। और किसी तरीके से अगर वो मैनेज भी कर लिया तो क्या है, यहाँ पे लीड है, ढक्कन है, वो जो कवर है वो बंद हो चुका है, वो बाहर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू विन स्ट्रैप। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स ऑन द पिक्चर द लीड क्लोजेज, ठीक है, एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंटैंगल्ड इनटू द हेयर, ठीक है, इंटैंगल हो जाता है किसमें, हेयर में। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, ठीक है। तो वहाँ पे फिर उसका डाइजेशन हो जाता है और वो न्यूट्रिशनल वैल्यू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। Venus trap, the two-lobed leaf possesses stiff spines like guard hairs around the margin, ठीक है। इसके भी इमेज में दिखाता हूँ। द इनर सरफेस हैज रेड कलर शॉर्ट स्टिफ हेयर कॉल्ड ट्रिगर हेयर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। जो बाहर वाला होता है, देखो दो लोब्स होते हैं, कैसे दो लोब्स होते हैं, तो अंदर वाला जो लोब्स है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, दो लोब्स हैं, तो इनर सरफेस कैसा है, रेड कलर का है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, अट्रैक्ट कलरफुल रहेगा तो अट्रैक्ट होएगा, ठीक है। द मोमेंट ऑन इंसेक्ट टचेज द ट्रिगर हेयर द लूव्स मेश विथ टुगेदर टू ट्रैप, ठीक है। देखो दो है, तो एक जो इनर वाला है वो कैसा कलरफुल है, इस पे जैसे ही कोई इंसेक्ट आके बैठेगा तो ये जो ऊपर वाला है वो क्या कर लेगा, ऐसे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर डायग्राम देखें तो इस तरीके का आएगा। देखो ये क्या बोल रहा है कि दो होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से, तो इस पे जैसे ही आके बैठेगा ना तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कोई इंसेक्ट अगर इस पे आके बैठ रहा है, ये कैसा, नीचे वाला क्या है, कलरफुल है, ये कैसा है, कलरफुल है, तो इस पर कोई इंसेक्ट अगर आके बैठ रहा है, इस पर अगर कोई इंसेक्ट आके इस तरीके से बैठ रहा है तो ऊपर वाला ऐसे क्लोज हो जाएगा। अब अगर इंसेक्ट बाहर आना चाहिए तो बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसका इमेज दोनों का मैंने इमेज लगा रखा है, मैं दिखाता हूँ, ये देखो। सो द फर्स्ट वन इज क्या है, फर्स्ट वन पिक्चर प्लांट है, ये हमारा लीड है, ठीक है, ये हमारा पिक्चर है। जैसे यहाँ पे कोई इंसेक्ट आके बैठेगा, ठीक है, क्या होगा, ये लीड क्लोज हो जाएगा, ये लीड क्लोज हो जाएगा, फिर वो बाहर आ नहीं पाएगा, इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा। इसमें देखो दो लोब्स हैं, एक लोब ये आपको दिख रहा है और एक लोब ये दिख रहा है आपको, ठीक है। इस पर अगर कोई इंसेक्ट आके बैठ रहा है, इस पर अगर कोई इंसेक्ट आके इस तरीके से बैठ रहा है तो क्या हो जाएगा, जो बाहर वाला लोब है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है, बाहर वाला लोब, और ये इंटैंगल्ड हो जाएगा, इस तरीके से इंटैंगल्ड हो जाएगा, इससे अब कोई इंसेक्ट बाहर निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। सो ये दो प्लांट्स हैं, वीनस ट्रैप, दिस वन इज वीनस ट्रैप एंड दिस वन इज पिक्चर प्लांट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सेप्रोट्रॉप्स, ये क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये ना डेड एंड डिकेइंग जो चीज़ें होती हैं उनसे अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल सपोर्ट लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वहीं से लेते हैं। सो दे derive nutrients from dead and decaying matter by releasing digestive juices that break down material outside their body। अभी तक हम जो देख रहे थे, ठीक है, अभी तक हमने जो देखा, इंसेक्टिवोरस देखा हमने, पैरासाइट देखा, टोटल पैरासाइट या फिर पार्शियल पैरासाइट, या फिर हमने फोटोसिंथेसिस देखा। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था ना, इसमें जो डाइजेशन था वो इंटरनल था, इनसाइड द बॉडी था, ठीक है। लेकिन अभी जो सेप्रोट्रॉप्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आउटसाइड डाइजेशन कर रहे हैं, फूड को आउटसाइड ही डाइजेस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव जूसेस वो क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग जहाँ पे वो रहेंगे, जिस होस्ट बॉडी पे वो रहेंगे, ठीक है, जिस होस्ट ऑब्जेक्ट पे रहेंगे वहाँ पे क्या करेंगे, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज कर देंगे। वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो उनका फूड है, जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट है या फिर कोई भी एनिमल मैटर है, वो क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है।
चलो, सो आउटसाइड द बॉडी देयर बॉडी दैट इज नोन एज एक्सटर्नल डाइजेशन। इससे पहले जो इनसाइड द बॉडी होगा वो इंटरनल डाइजेशन होगा। एग्जांपल्स इंक्लूड फंगी लाइक मशरूम्स, ईस्ट एंड मोल्ड। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बॉडी के बाहरी फूड को डाइजेस्ट कर लेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद वो क्या करेंगे, मतलब डाइजेस्ट मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, डाइजेशन मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो ब्रेक डाउन बाहरी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया है, डाइजेस्टिव जूसेस उस पर रिलीज कर दिए हैं। ठीक है, चलो ये देखो एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने किसका लिया है, मशरूम का लिया है। हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, मशरूम का लिया है। तो ये किस पे है, एक डेड एंड डिकेइंग मैटर पे है। ठीक है, किसी डेड पे है, किसी डेड पे है। अब ये क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज कर रहे हैं, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज कर रहे हैं। और वो क्या हो रहा है, ये वो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ, देखो ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स उसके टूट चुके हैं। अब वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये हमारा कोई डेड मटेरियल है, इस पे वो क्या कर रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज कर रहा है। डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होने के बाद वो क्या हो रहा है, ये जो सब्सटेंस है ये क्या हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद, सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटने के बाद क्या हो जाएगा, जो हमारा सिप्रोफाइट है वो क्या कर लेगा, जैसे मशरूम है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड सेज अबाउट सिम्बायोसिस एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड। ठीक है, जो मैंने पहले बोला था कि सिम्बायोसिस आ गया है, जो हमने देखा था इसमें, तो सिंथेसिस ऑफ अदर फूड प्रोडक्ट्स देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए, सॉरी उसके सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए अपने को, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए न्यूट्रिशन नाइट्रोजन चाहिए। और नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, तो सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है उनसे मिलेगा, या फिर रूट्स में जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है उससे मिलेगा। तो वहाँ पे मैंने बोला था बैक्टीरिया को क्या मिल जा रहा है, घर मिल जा रहा है रहने के लिए, और प्लांट्स को क्या मिल जा रहा है, तो प्लांट्स को उसके ज़रूरत की नाइट्रोजन मिल जा रही है। ठीक है, तो सिम्बायोसिस में दो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन दोनों को फायदा होता है। सिम्बायोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहते हैं और दोनों को फायदा होता है। सो इन सिम्बायोसिस टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, दोनों साथ में रहते हैं, शेयरिंग शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एंड शेल्टर शेयर करते हैं। ठीक है, तो एक को शेल्टर मिलता है, दूसरे को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। फॉर एग्जांपल लाइकेन। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गा एंड फंगस। फंगस एंड एल्गा का क्या है, कॉम्बिनेशन है। वेयर द एल्गा प्रोवाइड्स फूड, एल्गा क्या करता है, फूड, मतलब एल्गा फूड प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए आपको तुरंत से कि उसके पास क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। मैंने पहले बता दिया, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास क्लोरोफिल होगा वो फूड सिंथेसिस करेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोवाइड्स फूड मीन्स उसके पास क्या होगा, उसके पास क्या होगा, तो कार्बन, सॉरी क्लोरोफिल होगा। एंड द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये इसके पास क्या होगा, एक रूट का सिस्टम होगा, एक थैलस सिस्टम होगा, जिससे वो क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स लाके उसको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ये हमारा लाइकन है, किसका किसका है, एल्गा एंड फंगस का कॉम्बिनेशन है। एल्गा परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, एल्गा क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहे हैं। फूड एंड शेल्टर कौन दे रहा है, तो फंगस दे रहा है। ठीक है, चलो, सो आई होप कि इतना ही होगा इस चैप्टर में ना। एक लास्ट है, अच्छा हाँ, न्यूट्रिएंट्स हम सॉइल से ले रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, फूड जो बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, तो सॉइल से बन रहा है। तो सॉइल से हम न्यूट्रिएंट्स तो ले रहे हैं, तो अगर हम लेते रहे और हम सॉइल को हम दे ही ना, अगर हम सॉइल से लेते रहें और सॉइल को हम दे ही ना, तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि सॉइल से पूरी की पूरी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं वो कैसे ऐड हो रहे हैं, या फिर सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स फिर से आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, तो दो तरीके से आ रहे हैं। एक तो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया से आ रहे हैं, और दूसरा क्या है, जो फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं, जो फार्मर्स क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन या फिर न्यूट्रिएंट रिच जो फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं उसके वजह से आ रहे हैं। ठीक है, तो दो वजहों से आ रहे हैं। एक कैसा, द फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, द सेकेंड वन इज फार्मर्स आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स इन देयर फील्ड। ठीक है, चलो, plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amounts in the soil keep on declining. ठीक है, घटते रहते हैं। nutrients are replenished in the soil by two ways. The first one is nitrogen fixing bacteria, that is rhizobium। ठीक है, जो रूट्स में होते हैं, ये बेसिकली किस में होते हैं, तो पल्सेस के रूट्स में होते हैं। किसमें, पल्सेस के रूट्स में होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा पल्सेस में हम क्या देखते हैं, तो प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। देखो ये कंसेप्ट है भाई। ठीक है,
क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं उनके रूट्स में, ठीक है, रूट नोड्स में। वहाँ से वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में ला देते हैं, और वहाँ से वो प्लांट्स जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं, पल्सेस हैं, वो क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन सिंथेसिस कर लेते हैं। और उनके फूड में अगर नाइट्रोजन सिंथेसिस हो रहा है तो हम अगर उसको खाएंगे तो क्या होगा, अपने को क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। नाइट्रोजन से के हेल्प से वो अगर प्रोटीन बना रहा है तो हम उसको खाएंगे तो अपने को भी क्या मिलेगा, नाइट्रोजन नहीं, प्रोटीन मिलेगा। ओके, सो द बैक्टीरियम लीव्स इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, देखो लेगुमिनस लिख के रखा है, ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेगुमिनस legumes get their food, rhizobium gets food and shelter, whereas plant, तो यहाँ भी क्या हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, ठीक है। राइजोबियम को क्या मिल जा रहा है, फूड मिल जा रहा है एंड शेल्टर मिल जा रहा है। प्लांट को क्या मिल जा रहा है, उससे नाइट्रोजन मिल जा रहा है, तो दोनों को फायदा हो गया। राइजोबियम कैन कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सल्फर सोल्यूबल फॉर्म, किसमें, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो प्लांट उसको विद वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। दिस सिम्बायोटिक relationship has a great significance on the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers. हाँ देखो, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हमने क्या कर दिया, राइजोबियम के रिप्रोडक्शन को बढ़ा दिया। राइजोबियम के अमाउंट को अगर हमने सॉइल में बढ़ा दिया तो हम क्या कर सकते हैं, जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे सॉइल के लिए सही नहीं है, वो क्या करता है, इन्हीं जो बैक्टीरियाज हैं, जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको किल कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम किसी तरीके से राइजोबियम के नंबर को या फिर इस तरीके के जो भी अदर ऑर्गेनिज्म है उसके नंबर को हम बढ़ा पाएँ तो नाइट्रोजनस जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट्स, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूअर्स के यूज से भी दूसरा है, ठीक है। स्प्रेड बाय फार्मर्स कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। जो मेन होते हैं जो हम मैन्यूअर्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है एंड फॉस्फोरस होता है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड टाइम टू एनरिच द सॉइल फर्टिलिटी। ऐसे जो मैन्यूअर्स हैं, ऐसे जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनको क्या करना है, टाइम टू टाइम क्या करना है, अपने को ऐड करते रहना है, ताकि क्या हो, हमारे जो सॉइल में हो वो क्या हो, सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो, बनी रहे। ओह आजा भाई, सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो, बनी रहे। सॉइल की फर्टिलिटी के लिए क्या जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स, जो नाइट्रोजन, बेसिकली नाइट्रोजन की कमी पड़ती है, या फिर उसके अलावा जो जैसे कि पोटेशियम है, ठीक है, फॉस्फोरस है, इन सारी चीज़ों को अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड करते रहना पड़ेगा। सो होप ये चैप्टर आपको मज़ेदार लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। टाटा बाय बाय। और हिंदी का वर्जन इसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट्स में मैंने बता दिया था कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो बाय।